हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने इस मिसलेनियस एक्सरसाइज के 1 to 12 क्वेश्चंस अपने पिछले लेक्चर में किए थे। ठीक है, चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस। ठीक है जी, तो इसमें जो आपका 13th क्वेश्चन है उसमें क्या गिवन है कि equation of the line which is passing through the origin and making an angle theta with the line y is equal to mx plus c. You are to show that equation of that line is y upon x is equal to m plus minus tan theta upon 1 minus plus m tan theta. क्या है? ये दिया है कि आपके पास ये लाइन गिवन है, y is equal to mx plus c. L1 is given and you are to find out the equation of line L2, and you have been given that the line, these lines are making angle theta in between them. इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है। अब आपको लाइन L2 की इक्वेशन प्रूव करनी है कि वो ये है। ठीक है, then what to do? We know whenever the angle between the two lines are given, then we use that tan theta is equal to, कौन सा concept use करते हैं? Tan theta is equal to modulus of m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2, where m1 and m2 are the slopes of the two lines which are intersecting each other and making angle theta in between them. तो अब इसमें लाइन L1 का स्लोप तो साफ दिख रहा है, that is m. तो हमने लाइन L1 का स्लोप यानी m1 हमारा m है, and we don't know what is the slope of line L2, वो नहीं हमें पता, लेकिन एक चीज और पता है कि this line, they show that the equation of the line which is passing through the origin, ये जो लाइन L2 है, it is passing through the origin, it is given, यानी ये पॉइंट इसका कोई जहां से ये पास कर रही है वो ओरिजिन है, 0 0 है, इसका पासिंग पॉइंट मींस x1 y1 is 0 0 given to us. Now when, because slope of the second line is not given to me, so I will suppose that is m2. ठीक है, and angle between L1 and L2 is equal to theta. हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना है? ये tan theta is equal to m1 minus m2. Let us put the values of m1 and m2 in this formula to get the slope. हाँ जी, देखिए हमने m1 की वैल्यू तो हमारी m थी and m2 की वैल्यू हमने m2 ही रखी थी. We put these values. Okay. अच्छा, when we remove this modulus sign, then because there are arbitrary values, we don't know what are the particular values of m and m2, these are arbitrary values. When we remove the modulus sign, then it will get positive as well as negative sign, दोनों साइंस के साथ खुलेगा, तो एक बारी तो पॉजिटिव खुलेगा तो m minus m2 upon 1 plus m m2 आएगा, and when it will open with the negative sign तो ये चेंज हो जाएगा, m2 minus m हो जाएगा upon 1 plus m1 m2. Okay, now ओपन सॉल्व इट 1 by 1. पहले हमने इस पॉजिटिव साइन वाले को खोला तो ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, tan थीटा into 1, then tan theta into m into m2, and this is m minus m2. Now we will take this m2, मतलब the terms with the m2 on one side and without m2 on the other side we will take. So from here you can see m2 is common. So what is the value of m2? क्योंकि देखो मुझे L2 की अगर इक्वेशन निकालनी है, पासिंग पॉइंट तो I know that is 0 0. I need to find out its slope. Slope क्या थी उसकी? हमने रखा था m2, तो m2 एक बारी तो ये निकला है. अच्छा, दूसरी बारी in the second case अगर हम नेगेटिव के साथ ओपन करते हैं तो हमें पता है tan theta is equal to m2 minus m upon 1 plus m into m2. तो आपने इसको सिंप्लीफाई किया. अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास you cross multiply and you will get the value of m2 in this case also. तो अभी दो वैल्यूज m2 की आई. अभी आप देखो ऊपर एक m2 आया जिसमें m minus tan theta था, और यहाँ पर क्या है? m plus tan theta. ठीक. अच्छा, ऊपर जब यहाँ
न्यूमरेटर में माइनस था तो डिनोमिनेटर में प्लस है, लेकिन इस केस में अगर न्यूमरेटर में प्लस है तो डिनोमिनेटर में माइनस है। तो अगर देखो यहाँ पर m2 की दो वैल्यू आई, इफ इन द न्यूमरेटर इट इज प्लस, in the denominator it is minus, in the numerator if it is minus, in the denominator it is plus. So move ahead. After this, equation of the line which is passing through 0 0, 0 0 is the passing point and the slope, you know this is the slope. तो आपके पास हमने यहाँ पर y minus 0, क्योंकि स्लोप की इक्वेशन जो हम रखेंगे, क्या रखेंगे, स्लोप सॉरी इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द वन पॉइंट स्लोप फॉर्म, दैट इज योर y minus y1 is equal to m into x minus x1. You know the value of x1 y1 passing point is given to you, that is equal to 0 0. तो हमने क्या किया, यहाँ इस फॉर्मूले में जो ये आपका स्लोप, यहाँ ये वैल्यू m की, ये m2 आपने पुट की, और क्योंकि इसमें दो है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रखनी है, ठीक है, कंबाइन करके ये वाली m2 की वैल्यू ये आपकी रखी है हमने, एक्चुअली m2 की वैल्यू वी हैव पुट दिस वैल्यू ऑफ m2 हियर, स्लोप की वैल्यू ये रखी, एंड x1 y1 इज 0 0, x1 y1 0 0 पुट किया हमने, ठीक है. So we got this equation of the line which was required to prove. So it is done. In next question 14 it is given in this question that you have to find out the ratio in which this line which is obtained by joining this point -1 and 1 and 5 7 is divided by this line x plus y is equal to 4. This type of question you have already done in your junior classes also, in 10th class also. तो इसमें आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है कि ये पॉइंट से ज्वाइन होने वाली लाइन, ठीक है, वो एक और लाइन जो है दैट इज x plus y is equal to 4, वो किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, हमने लिया k:1 रेशियो में डिवाइड कर रही है, सपोज कर लिया कि दैट इज डिवाइडिंग इट इन द रेशियो k:1. सो लेट अस सी हाउ it is done. So by section formula this x1 y1 will be k into 5 plus 1 into -1 upon k plus 1. Likewise for the y coordinate, and when we compare, this is the point now, because this point you can see here in the figure, this point we have obtained. Let us give a name to it. Let us suppose I am giving this name P to it. Suppose ये point P है, ठीक है, and this is point P, and this point P we have obtained by applying the section formula, and we know that this point P lies on this line x plus y is equal to 4. Therefore it must satisfy this equation. तो हम ये जो point आया है आपके पास, इसको हम कहाँ पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है, इस इक्वेशन में पुट करते हैं. चलिए देखते हैं क्या आता है हमारे पास. हमने x plus y is equal to 4 में इसको पुट किया, तो k की वैल्यू आपकी कितनी आई, 1/2. सो रिक्वायर्ड रेशियो इज 1/2. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15 में फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन. कौन सी है ये लाइन आपकी दे रखी है, ये देखिए 4x plus 7y plus 5 is equal to 0. ये एक लाइन दे रखी है, इसकी डिस्टेंस, इस पॉइंट की डिस्टेंस, कौन से पॉइंट की, 1 2 से अलोंग दिस लाइन, इस लाइन के अलोंग. समझो इस बात को, कहने का मतलब क्या है कि वैसे तो अगर हम देखें ये डिस्टेंस आपकी ऐसे भी हो सकती थी, ये डिस्टेंस ऐसे भी हो सकती है आपकी, कैसे ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे होती, तो वो तो डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड लाइन निकाल लेते हैं, लेकिन हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बोला, हमें बोला है कि बी पॉइंट से, ठीक है, ये लाइन के अलोंग, इस लाइन के अलोंग
इस लाइन के अलोंग 2x माइनस वाई के अलोंग अगर आप इसको लाइन को ड्रॉ करें तो जहां पर भी ये आपकी इंटरसेक्ट करेगी 4x प्लस 7y प्लस 5 को, वहां पर जो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी वहां से डिस्टेंस निकालनी है, ये ए बी आपकी निकालनी है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम ये दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। पॉइंट ए आ गया, पॉइंट ए से ए और बी की डिस्टेंस निकाल लेंगे आपकी 2 पॉइंट फॉर्म से। हाँ जी, इसमें हमने दोनों लाइंस जो दी हुई थी देखिए उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सबसे पहले निकाला है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला हमने दोनों लाइंस का एलिमिनेशन मेथड से, और डिस्टेंस जो पॉइंट हमें गिवन है उस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस हमें 2 पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला से हमने इनका डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर दिया। यू कैन चेक इट हाउ इट हैज बीन डन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर है हमारा 18। इस क्वेश्चन में यू आर टू फाइंड द इमेज ऑफ दिस पॉइंट 38 with respect to this line assuming the line to be the plane mirror। अब ये देखिए ये हमारी लाइन है, ठीक है, ये लाइन दी हुई है। अगर मैं इसको यहाँ ड्रॉ करूँ तो ये लाइन है आपकी। इस लाइन की इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल टू 7। ठीक है, अब ये जो लाइन है आपकी इसको मिरर मान लीजिए और एक पॉइंट लीजिए यहाँ पर 38। हमने इस पॉइंट को ए लिया। ठीक, अब अगर ये मिरर है, मिरर में हम अपनी इमेज देखते हैं तो हमें मिरर के अंदर उतनी डिस्टेंस पर दिखती है। तो जैसे जितनी डिस्टेंस पर ये ए है इससे, ठीक है, यहाँ पर मान लो उतनी ही डिस्टेंस पर अंदर मिरर के दिखाई देगी ना, यहाँ पर ये भी, ये इसकी इमेज है 38 की इमेज, ये हमें बी पॉइंट दिखाई दे रहा है। ये आपकी इमेज बी पॉइंट, हमने एक्स वाई ये ले लिया। ओके, अब हम ये कैसे निकालें, ये कैसे निकालें? यू कैन सी दिस लेंथ ए डी, ये जो ए डी लेंथ है और ये जो डी बी है इनकी डिस्टेंस सेम, यानी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब ए बी, अब आप ए बी को कैसे निकालेंगे? पहले तो ए बी जो है, अब देखिए एक चीज और, ये परपेंडिकुलर है। देखिए अगर लाइन ये एल है मेरी, इस लाइन की इक्वेशन दी हुई है और ए बी जो है, ये ए बी जो है आपका वो परपेंडिकुलर है आपके एल के, तो इस लाइन ए बी की इक्वेशन निकालना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, जबकि मुझे ए बी का एक पॉइंट 3,8 इट इज गिवन। तो सबसे पहले मैंने लाइन एल की स्लोप निकाली माइनस ए अपॉन बी, ये मेरी लाइन ए बी एल दी हुई है, इसकी स्लोप मैंने -1/3 निकाली। तो एंड ए बी इज परपेंडिकुलर, आप देख सकते हैं ये जो ए बी है ये ब्लैक कलर से जो मैंने बनाई है वो एल के परपेंडिकुलर है। तो अगर एल की स्लोप -1/3 है तो इसका रेसिप्रोकल करके नेगेटिव कर दो स्लोप ऑफ ए बी, यू विल गेट, सो स्लोप ऑफ ए बी इज द रेसिप्रोकल of negative -1/3, that is 3 आ गया। तो slope of AB is 3 and one point, you know it very well, it's given that point A, that is 3,8। so what is the equation of AB? Y minus y1 is equal to m into x minus x1। ये देखिए आगे ये वाली आपकी इक्वेशन, इसमें आपकी m की वैल्यू आपने 3 पुट की एंड x1 y1 पॉइंट ए 3,8, x1 की जगह 3, y1 की जगह 8 पुट किया, यू गॉट दिस इक्वेशन ऑफ दिस AB। AB की इक्वेशन आ गई। अब हम AB एंड L लाइन वेयर दीज आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, अब हम इसको एलिमिनेशन मेथड से ये पॉइंट D निकाल सकते हैं। बट वी नो दैट पॉइंट D इज मिड पॉइंट ऑफ, पॉइंट D जो है दैट इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब हमारा पॉइंट डी कितना आया 1,2, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दीजिए इसमें और इसमें, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिए 3 + x/2
and 8 plus y upon 2. Compare these. 1 is equal to 3 plus x upon 2. So this is x is equal to -1 and 2 is equal to 8 plus y upon 2. So this is y is equal to -4. तो आपके पास जो पॉइंट एक्स वाई आ गया, यानी ये वाला पॉइंट जिसको हमने इमेज बोला था, वो क्या आया? एक्स की जगह 1, वाई की जगह -4. सो इमेज, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू फाइंड आउट द इमेज ऑफ एनी पॉइंट बाय कंसीडरिंग एनी लाइन एज द प्लेन मिरर. ठीक है, किसी भी पॉइंट की इमेज निकालना किसी लाइन को प्लेन मिरर कंसिडर करके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. दिस इज यूज्ड इन योर 12th क्लास. उसमें यहाँ प्लेन होगा लाइन की जगह, बट दिस कंसेप्ट इज देयर आल्सो इन 12th क्लास. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एक कॉन्सेप्ट है. ठीक है जी. हाँ जी, ये देखिए, इसी को जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, दैट हैज बीन डन हियर. ठीक है, मिड पॉइंट था, तो मिड पॉइंट ये इक्वल करके ये हमारे पास अभी पॉइंट आया था. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 19. 19th क्वेश्चन में क्या बोला है? इफ द लाइन, दिस लाइन एंड दिस द अदर लाइन आर इक्वली इंक्लाइंड टू दिस लाइन, यानी एक ये वाली लाइन दी हुई है आपको y इज इक्वल टू mx प्लस 4, और ये दो लाइंस जो हैं वो इक्वली इंक्लाइंड है. इक्वली इंक्लाइंड यानी कि ये जो इस लाइन के साथ इक्वल एंगल्स बना रही है. फाइंड द वैल्यू ऑफ m. आपको इस लाइन की स्लोप निकालनी है. ठीक है, तो अब इसमें कैसे करेंगे अभी देखते हैं. हाँ जी, तो ये हमने क्या करना है कि ये पहली वाली जो लाइन है 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 और दूसरी लाइन y इज इक्वल टू 3x प्लस 1. ठीक है, इनके स्लोप्स निकाल लेंगे. क्या निकालेंगे? स्लोप्स. इसका स्लोप, एक का स्लोप m1, दूसरे का स्लोप m2. अच्छा, हमने इसको लाइन L1 लिया है, ध्यान दीजिए, और इसको L2 और इसको L3. तो L1 का स्लोप तो दिख ही रहा है, m है यहाँ पर, है ना. अब L2 स्लोप, L2 जो लाइन है उसका स्लोप क्या? y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर किया. किससे कंपेयर किया है हमने? y इज इक्वल टू mx प्लस c से अगर कंपेयर करते हो कौन सी लाइन को? y इज इक्वल टू 3x प्लस 1. तो जो सेकेंड लाइन है आपकी, उसकी स्लोप क्या आ गई? आप देख लीजिए, 3 आ गई. ऐसे जो तीसरी लाइन आपको दी हुई है वो दी हुई है 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3. तो अभी हम इसको लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 प्लस 3/2. तो अब जब हम इसको कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तो इस लाइन की जो स्लोप आएगी वो 1/2 आएगी. देखो 1/2 आएगी. ठीक है, तो अब हमारे पास तीनों लाइंस की स्लोप आ गई. पहली वाली इस लाइन की L1 की आ गई m, L2 लाइन की आ गई 3 एंड L3 लाइन की जो स्लोप आ गई है वो आ गई 1/2. ओके, ये देखिए. अब इसके बाद ये इनको नाम दे दिया m1, m2, m3, द कॉरेस्पॉन्डिंग स्लोप्स. अब एंगल बिटवीन L1 एंड L2 θ1 एंड एंगल बिटवीन L1 एंड L3 इज θ2. ये देखिए ऊपर फिगर में L1 एंड L3 में, L1 एंड L2 में एंगल θ1 लिया हमने, एंड L1 एंड L3 लाइन में वी हैव टेकन दिस एंगल θ2. अभी देखिए क्या है कि ये जो L1 एंड L2 है, इसका θ1 एंगल है, और L1 एंड L3 के बीच में θ3 एंगल है. अब θ1 is equal to θ3, it is given that they are equally inclined, these L2 and L3 are equally inclined to L1. तो θ1 और θ3 इक्वल है, यानी आप अगर ये इक्वल है तो इनके टेंजेंट भी इक्वल होंगे. दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस. अगर θ1 θ2 इक्वल है तो टेंजेंट ऑफ θ1 इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ θ2. व्हाट इज दिस टेंजेंट ऑफ θ1? टेंजेंट ऑफ दो लाइंस के बीच में अगर एंगल θ1 है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? वी नो इट वेरी वेल. Difference of their slopes divided by 1 plus product of their slopes, and it will be taken in modulus. ये फॉर्मूला लगेगा. जब हमने L1 and L3 में लिया तो इनकी slopes का difference upon 1 plus the product of their slopes. Now put their values, जो अभी हमने निकाली थी M1, M2, M3 की values, we have put it here. उसके बाद क्योंकि modulus है, whenever there is modulus sign, and to remove
दिस मॉडुलस क्या करते हैं, हम प्लस माइनस दोनों साइन लगेंगे। जब भी अंदर वेरिएबल है मॉडुलस में और हम मॉडुलस साइन हटाते हैं तो प्लस माइनस दोनों से साइन आएंगे। ठीक है, ये हमने दोनों साइन एक बारी प्लस से और एक बारी माइनस से इसको सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ m। इसमें एक बारी m स्क्वायर माइनस वन आया उसको इम्पॉसिबल कर देंगे और फिर दोबारा से दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे तो हम इससे आपकी m की वैल्यूज आ जाएंगी। ये देखिए ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं m की, सिंपलीफाई करके उस क्वाड्रेटिक इन m था, we solved it and we got the value of m। हमने जो लाइन L1 थी उसकी स्लोप निकाल लिया, वो ये आई है 1 + -5√2/7। Now come to next question number 20। 20th question में if the sum of the perpendicular distances of a variable p x y from the lines, two given lines से उनका sum of perpendicular distance is always 10, show that p must move on a line। तो ये देखिए ये पॉइंट p है, फर्स्ट लाइन से उसकी डिस्टेंस d1 और ये सेकंड लाइन से उसकी डिस्टेंस d2। d1 और d2 का सम जो है वो ऑलवेज 10 है और आपको प्रूव करना है दिस पॉइंट p लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन, इसका लोकस स्ट्रेट लाइन है। तो हमने क्या किया, d1 + d2 = 10, फॉर्मूला अप्लाई किया फ्रॉम अ पॉइंट टू द लाइन bx1 + by1 + c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a² + b² इन बोथ द केसेस। पहले हमने इसका किया प्लस फिर इसका, दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद इसमें देखो हो सकता है ये दोनों पॉजिटिव हो सकता है ये दोनों नेगेटिव हो सकता है इन दोनों में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, तो सारे केसेस को हम कंसिडर करके चलेंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो मॉडुलस है, इन द मॉडुलस साइन x एंड y आर द वेरिएबल्स। जब भी हमारे मॉडुलस में x आपके वेरिएबल्स होते हैं एंड वी ओपन दैट मॉडुलस सिंबल, तो हम उसको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कंसिडर करते हैं। तो केस 1 में आई हैव टेकन बोथ ऑफ दीज मॉडुलस बाय टेकिंग आई हैव ओपन दीज बाय टेकिंग बोथ एज अ पॉजिटिव। दोनों को पॉजिटिव लेके एलसीएम लेके मेरे पास एक इक्वेशन आई और जब इसमें मैंने x y कोएफिशिएंट्स को I have kept together, then I can see this is a linear equation in two variables x and y which represents a straight line। अच्छा, केस सेकंड मैंने जो लिया, in case 2 I have considered first positive and second as the negative, and after simplification of this again I am going to get one linear equation in two variables, again that will be representing a straight line। So in all cases I will get linear equations in two variables which will be representing the straight line। So hence I can say that point P is the locus of a straight line। अगला, इसमें हमने दोनों नेगेटिव लिए हैं, पहला मॉडुलस भी नेगेटिव दूसरा भी नेगेटिव, तब भी आपका एक स्ट्रेट लाइन ही आएगा। ठीक, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21। In question number 21, find the equation of the line which is equidistant from these two given parallel lines। देखिए आपको बोला ये दो लाइंस हैं and these two lines are parallel, how can you say these are parallel? देखिए a1 upon a2 is equal to 9, पहली लाइन में ये 9 है और ये 3, तो 9/3 that is 3, b1 upon b2 that is 6 here and 2 here, again 3, now c1 upon c2 minus 7 upon 6, so we can say a1 upon a2 equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2, therefore these two given lines are parallel lines। ये दोनों lines parallel lines हैं। ठीक है, अब हमने ये दो parallel lines यहाँ पर ली, ये दोनों, ठीक है, और एक लाइन है ये जो मुझे फाइंड आउट करना है, एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू द टू गिवन लाइंस, इक्वल डिस्टेंस पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है, पहली वाली लाइन से और दूसरी वाली लाइन से मेरी रिक्वायर्ड लाइन की डिस्टेंस इक्वल है। अगर डिस्टेंस इक्वल है इट मींस दिस इज अ पैरेलल लाइन टू लाइन 1 आल्सो एंड लाइन 2 आल्सो। तो अभी सबसे पहले मैंने क्या किया, पैरेलल लाइंस के बीच में कभी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना हो तो हमारे x एंड y के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। तो I have multiplied this line by 3, इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, दिस इज 9x प्लस 6y प्लस 18। ओके, अब ये जो मेरी रिक्वायर्ड लाइन है
दैट इज ऑल्सो पैरेलल टू दिस गिवन टू लाइन्स, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पर है। तो इसमें हम कभी भी पैरेलल लाइन है वो ऐसे ही बनती है आपकी, इनके एक्स और वाई के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, 9x प्लस 6y प्लस c, सिर्फ कांस्टेंट अलग होगा, आपके ये दोनों सेम कर दिए, ठीक है। अब इसके बाद ये देखें, हमने सबसे पहले तो ये जो गिवन लाइन थी, ठीक है, इसके एक्स वाई के कोफिशिएंट सेम करने के लिए हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, हो गया ये सेम। Now let my required line is this, which is parallel to the first and the second line. So that will be 9x plus 6y plus c equal to 0. ठीक, अगर सपोज करो मेरी एक लाइन है, that is 2x plus 5y plus 7 is equal to 0. And I want to write down one more line which is parallel to this given line. Then I can write it as 2x plus 5y plus 11 equal to 0. I can write it 2x plus 5y plus 9 equal to 0. So means x and y coefficient, either they must be in the same ratio with the first line, or they may have the equal coefficients. मैंने equal coefficients लिख लिए इनके, सिर्फ ये c change होता है, ठीक है जी। तो अब इसी तरह से जो मेरी required line है वो parallel है इन lines के, so that's why I have taken their x and y coefficient same as of the given two lines. And I have changed only the value of this constant c, ठीक है। अब इसके बाद अब जो distance between the first and third and second and third, first and third and second and third मतलब जो दो lines हैं, ये हमारी दो lines given थी और ये मेरी required line थी, ये L1 थी, ये L2 थी और ये L3। अब मुझे पता है L1 and L3 की जो distance है वही distance L2 and L3 की है, ठीक है। तो वही किया मैंने, L1 and L3 की जो डिस्टेंस है वो D1 लिया हमने, इसको D1 लिया और इसको D2 लिया। सो D1 इज इक्वल टू D2, तो दोनों के डिस्टेंसेस में जो फॉर्मूला होता है पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस फॉर्मूला, आई विल अप्लाई दैट फॉर्मूला and I will use it here and here also, and I will get the value of C. Let us see how. हाँ जी, देखिए यहाँ पर कैसे किया हमने, D1 और D2 दोनों को इक्वल रख दिया, ठीक है। और इससे अब ये देखिए, अब इसमें जब ये नीचे वाला डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो गया, दोनों में सेम है। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो बिकॉज मॉडुलस इज हियर एंड इनसाइड द मॉडुलस देयर इज अ वेरिएबल, तो एक बारी पॉजिटिव साइन के साथ खोलना है, एक साइड ही साइन चेंज करना होता है, ठीक है। ये नहीं कि हमने दोनों साइड किया तो प्लस ना, आप एक बारी यहाँ से मॉडुलस हटाइए, इधर से भी हटाइए, एक साइड प्लस माइनस कर दीजिए। तो एक बारी माइनस के साथ इसको ओपन किया और एक बारी प्लस के साथ ओपन किया, ठीक है। तो यू विल गेट इट लाइक दिस। c की वैल्यू 11/2 आई है, तो आपकी इक्वेशन आपने यही लिखा था ना, L3 की इक्वेशन 9x plus 6y plus c की वैल्यू पुट कर दीजिए, यू विल गेट योर रिक्वायर्ड लाइन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 22। 22 में गिवन है अ रे ऑफ लाइट passing through the point 1, 2 reflects on the x-axis at a point A and reflected ray passes through the point 5, 3. Find the coordinates of the point A. देखिए उसने बोला कि ये रे आ रही है एक लाइट की, 1, 2 पॉइंट से आ रही है ये, एंड आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम x-axis, x-axis देखो ये मैंने x,0 लिखा है, इसी वजह से इट इज इंडिकेटिंग दैट दिस पॉइंट A, दिस इज A पॉइंट, ये जहां से ये रिफ्लेक्ट हो रही है वो जो आपका पॉइंट है A, ये आपका A पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट जो आपका A है that lies on x-axis, x,0, and after getting reflected it is passing through the point Q, that is 5,3. Now I have to find this point A, ठीक है। Let the coordinates of the point A x0 because it lies on x-axis, so y coordinate is 0. Now AQ, this A to Q makes an angle theta with x-axis, ये इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, ओके। तो ये आपका इधर भी ये एंगल थीटा बनाएगा, यू नो द लॉ ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के लॉ क्या है, अकॉर्डिंगली आपका ये अगर ऐसे है, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, एंड इफ यू ड्रॉ दिस नॉर्मल,
देन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है आपका। बिकॉज ऑफ दिस रीजन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है। इसी वजह से आपके ये वाले एंगल भी दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है, बिकॉज दीज टू एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि इसका सम भी 90 है, ये भी 90 है, ये नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है आपने, है ना। तो जब आपने आई इज इक्वल टू आर रखा तो आपके ये वाले जो एंगल्स हैं ये वाले भी आपके सेम आएंगे, ठीक है। यही यहाँ पर लिखा है कि ये एंगल पी ए एक्स डैश इज इक्वल टू एंगल क्यू ए एक्स। ओके, नाउ आफ्टर दिस अभी हम अगर ये हमारा, अगर मैं इसको दोबारा से बनाऊं, ड्रॉ करूं यहाँ पर, देन यू विल सी ये P है, ये A है और ये आपका Q है, ठीक है। और ये आपका थीटा ये था, तो थीटा ही ये है क्योंकि दोनों इक्वल है, और ये ये नॉर्मल। अब tan थीटा अगर फॉर रे ए क्यू देखा जाए, ए क्यू इसके लिए देखा जाए, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल है, तो आपका ये क्यू है, ये क्यू क्यू पॉइंट, ये थीटा नहीं है, ये क्यू है, ठीक है, दिस इज क्यू। हाँ जी, तो जो थीटा बन रहा है ये वाला एंगल जो बन रहा है आपका, ये एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, जो एक्स एक्सिस के साथ बनता है वो तो हमें डायरेक्ट स्लोप देता है, तो हमें ये डायरेक्ट स्लोप देगा। tan थीटा इज इक्वल टू ये जो दो पॉइंट, ये पॉइंट आपको पता है, ये पॉइंट आपका x,0 है और ऊपर वाला ये पॉइंट आपका 5,3 है, ये 5,3 है और इधर 1,2 है। तो आप इसकी स्लोप निकाल सकते हैं ना 2 पॉइंट फॉर्म से, क्योंकि ये पॉइंट आपका ये रहा x,0 और ये पॉइंट आपका 5,3 है। तो स्लोप इसकी, क्योंकि x एक्सिस है ये आपकी, ये वाली x एक्सिस है, जब भी x एक्सिस के बीच में ये एंगल होता है देन वी कैन फाइंड आउट स्लोप। हमने स्लोप इसकी निकाल ली, y2 minus y1 upon x2 minus x1 means 3 minus 0 upon 5 minus x, ठीक है। अब इसके बाद ये वाला थीटा अगर निकालें, अगर आप ये वाला थीटा, तो ये थीटा कैसे निकलेगा? देखो, अगर मैं पी ए की स्लोप चाहिए मुझे, ये मेरा पी ए है, ये पी है और ये ए है, ठीक है। अब मुझे इसकी स्लोप चाहिए, तो स्लोप तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ही निकलती है, ये है, ये निकलेगी। अब आप ये देखो कि ये एंगल मेरा थीटा है, ये वाला ये थीटा है, तो ये कितना आएगा 180 माइनस थीटा। तो अगर मुझे पी ए की स्लोप चाहिए तो टेंजेंट ऑफ 180 माइनस थीटा के साथ चाहिए, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ हमेशा एंगल चाहिए होता है। तो स्लोप ऑफ पी ए चाहिए जब मुझे, ये लिखा है इधर पी ए के लिए, जब मुझे स्लोप ऑफ पी ए, ये इसमें ए क्यू लिखा है, ये पी क्यू नहीं, ये पी ए है। पी ए के लिए जब मुझे स्लोप चाहिए तो आपकी फिर ये देखिए पी ए, ये पॉइंट है ना पी ए की स्लोप क्या होगी y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1 मींस 2 minus 0 अपॉन 1 minus x। अब टेंजेंट 1 minus 180 minus थीटा आपके पास क्या होता है? टेंजेंट 180 minus थीटा क्या होता है? माइनस टेंजेंट थीटा, तो माइनस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 माइनस एक्स। इसका मतलब टेंजेंट थीटा कितना आ गया 2 अपॉन x माइनस 1। लेकिन टेंजेंट थीटा तो आपने यहाँ भी निकाला था, इन दोनों को आप कंपेयर कर दीजिए, तो बाय 1 एंड 2 इसके अकॉर्डिंगली टेंजेंट थीटा ये है और यहाँ से टेंजेंट थीटा ये आया। तो इफ यू कंपेयर दीज टू, 3 माइनस 0 अपॉन 5 माइनस x इज इक्वल टू your 2 upon x minus 1. If you cross multiply, this is 3x minus 3 is equal to 10 minus 2x. This is 5x is equal to 13, x is equal to 13 by 5. Therefore point A आ जाएगा जो कि हमारा x, 0 था, यानी 13 by 5, 0. This is your required point on x-axis. हाँ जी, आप ये देख सकते हैं, यही पॉइंट हमने निकाला अभी ऐसे 13 by 5, 0। ये यहाँ पर देखिए 13 by 5, 0 ये पॉइंट आया। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया है prove that the product of lengths of the perpendiculars drawn from these 2 points to this line is b square। समझिए क्वेश्चन क्या है। ये मेरी एक लाइन गिवन है,
x अपॉन a cos थीटा प्लस y अपॉन b sin थीटा इज इक्वल टू 1। मैंने इसको जनरल फॉर्म में बनाने के लिए इज इक्वल टू 0 फॉर्म लेके आने के लिए आई हैव शिफ्टेड दिस वन टू दिस साइड। इस लाइन की डिस्टेंस इस पॉइंट से और इस लाइन से, इस पॉइंट से सॉरी, इस लाइन की डिस्टेंस इस पॉइंट से और इस पॉइंट से जो आ रही है उनका जो प्रोडक्ट है, यानी कि डिस्टेंस अगर d1 है और इधर डिस्टेंस d2 है, अगर हम इनका प्रोडक्ट लें यानी d1 d2 करें तो दैट प्रोडक्ट इज d स्क्वायर। दिस इज टू बी प्रूव्ड। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिस्टेंस फ्रॉम फॉर्मूला फ्रॉम अ पॉइंट टू द लाइन विल बी यूज्ड। और हमें पता है डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन मॉडुलस अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट। दिस इज योर डिस्टेंस फॉर्मूला। सो नाउ we will use this is x1 y1 for d1, x1 y1, y1 तो 0 ही हो गया, तो x1 is square root of a square minus b square. And what is the value of c here in this equation? You can see what is the value of c, that is your minus. We'll put it in the formula. You can see it here. You can see पहले हमने एलसीएम लेके ना इसको सिंप्लीफाई कर लिया, एलसीएम ले लिया इसका a और b का, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद अब हमने यहाँ पर पुट किया इसको, ठीक है। x का कोफिशिएंट क्या है, b cos थीटा, उसका स्क्वायर किया। y का कोफिशिएंट क्या, a sin थीटा, वी हैव टेकन द स्क्वायर ऑफ दिस आल्सो। नाउ distance you can see the between the first point this square root of a square b square comma 0, ये आपकी डिस्टेंस आ गई d1। ऐसे ही जब d2 लेंगे अब हम x की जगह माइनस ऑफ, यहाँ x की जगह माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पुट करेंगे। यहाँ तो 0 ही आएगा क्योंकि यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0 है, माइनस ab। लेकिन you are to keep it in the square root सॉरी मॉडुलस में ही रखना है, ठीक है। अच्छा अभी यहाँ पर देखिए both of these are getting the negative sign. You can take this negative sign common and this negative sign will be absorbed with this modulus. तो ये गायब हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, b of square root of a square minus b square cos theta plus ab upon this. And in d1 also you will get this, लेकिन यहाँ पर एक माइनस है ये यहाँ पर। अब हम d1 और d2 को दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, but because in question we are given to find out the product of these। हाँ जी, अब देखिए d1 d2 की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है और हमें प्रूव करना है d1 d2 इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो हमने d1 और d2 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। वहाँ दोनों नेगेटिव थे ना, देखो मॉडुलस के साथ एब्जॉर्ब हो गए, हमने यहाँ ऊपर दिखाया है, तो मॉडुलस के साथ एब्जॉर्ब होने के बाद क्या आया। अब ये देखिए यहाँ पर दिस इज a माइनस बी, दिस इज a प्लस बी, होता है a माइनस बी a प्लस बी आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी इस पूरे का भी स्क्वायर हो जाएगा माइनस इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट में से हट गया। अब इसके बाद यहाँ से देखिए b स्क्वायर हियर आल्सो एंड b स्क्वायर हियर आल्सो। आई हैव टेकन दिस b स्क्वायर कॉमन, b स्क्वायर को हमने कॉमन निकाल लिया है। अब देखो जब हमने कॉमन निकाला ना उसको b स्क्वायर, स्क्वायर जब भी है ये तो वो ये देखिए, और नीचे अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गई इसमें, in the denominator both of these are being multiplied। जैसे square root 2 into square root 2 क्या होता है, 2 होता है, ऐसे square root this of square root this दोनों का square root गायब हो जाएगा क्योंकि both are identical and being multiplied, square root it's cancelled here। अच्छा यहाँ से अब देखिए इसको now from here b square common you can take this out। आप इसको यहाँ से बाहर भी निकाल सकते हैं b स्क्वायर को। क्यों निकाल सकते हैं बाहर, रीजन क्या है बाहर निकालने का, उसका रीजन ये है क्योंकि स्क्वायर मॉडुलस का मतलब भी होता है पॉजिटिव और स्क्वायर का मतलब भी पॉजिटिव है। अगर आप b स्क्वायर को बाहर निकाल दें देयर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन टेक दिस b स्क्वायर आउटसाइड दिस मॉडुलस सिंबल। ओके चलिए अब उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, ये देखिए a स्क्वायर इनटू cos थीटा माइनस b स्क्वायर इनटू cos थीटा माइनस b स्क्वायर, ये लिखा आपने। कैसे लिखा, पहले इसको आप ऊपर से देखिए, यहाँ से पहले b स्क्वायर कॉमन निकाला आपने बाहर, अब फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को cos स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर, अब यहाँ पर ये जो cos स्क्वायर थीटा ना ये cos स्क्वायर थीटा ये और यहाँ पर a स्क्वायर,
यहाँ भी a स्क्वायर, इन दोनों में से a स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ इन दोनों में से देखो, इसमें से और इसमें से, तो हमने a स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं तो बनता है cos स्क्वायर थीटा -1, लेकिन हम माइनस ले लेते हैं अगर, तो ये बन जाता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो वही किया, देखिए माइनस, ये माइनस बी स्क्वायर हमने पहले इधर कर दिया साइड में, ये देखिए माइनस बी स्क्वायर इधर लिख दिया है, ठीक है, ये, और माइनस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ओके, एंड आफ्टर दैट माइनस ए स्क्वायर, जो अभी आपको यहाँ समझाया है, ये बाहर देखिए यहाँ पर जो समझाया है, ओके, दिस इज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? sin स्क्वायर थीटा, दैट इज sin स्क्वायर थीटा, ओके, तो ये तो sin स्क्वायर थीटा बन गया। अब इसके बाद आपने यहाँ दोनों में से माइनस कॉमन है, उसको बाहर निकालो और मॉडुलस के साथ एब्सॉर्ब कर दो, ठीक है, यहाँ देखिए दोनों का माइनस निकाला है, दोनों का यहाँ से माइनस निकाला, पहले तो ये साइन स्क्वायर हो गया, माइनस साइन इसका निकाला हमने, ठीक है, वो हमने एब्सॉर्ब कर दिया यहाँ पर, इसके साथ माइनस मॉडुलस बी स्क्वायर, और ये, अब ये देखो इसको मॉडुलस क्यों हटा, क्योंकि ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर, सारे स्क्वायर हैं ये, और स्क्वायर का मतलब पॉजिटिव होता है, नो नीड टू कीप इट इन द मॉडुलस साइन, सारे स्क्वायर्स हैं, स्क्वायर्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं, उनको मॉडुलस में रखने की जरूरत नहीं, ऐसे ये माइनस इसका एब्सॉर्ब हो जाएगा, फिर इस स्क्वायर को भी मॉडुलस में रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बी ऑलवेज, देखो ऑलवेज पॉजिटिव जो है हमें पता है, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, नो नीड टू कीप इट इन द मॉडुलस, तो d1 d2 इज इक्वल टू b स्क्वायर, यही हमने प्रूव करना था, हेंस इट इज प्रूव। सो इट्स अ वेरी लेंथी क्वेश्चन, you try it yourself once again, इसकी written practice करके आएगा, and with this question your miscellaneous exercise of 10th chapter is also completed.